Welcome again, children. Let's start. Today's date is 27 January 2021. Day is Wednesday. Subject English language. Topic Lesson number 14 Singular and Plural Verbs Part 1. So, children, today is 27 January. That means yesterday was 26 January, Republic Day. Hope you all had seen the parade on the TV and enjoyed it. Now, let's come back to the lesson. This is our lesson number 14, singular and plural verbs. यहाँ पे verbs की बात हो रही है children. So please remember, verb is different than the noun. Okay, we change the verb differently than the noun. Okay, a singular subject takes a singular verb. A plural subject takes a plural verb. So, if a subject is singular, if a noun or a pronoun, as I had told you, subjects are noun and pronouns in our previous lesson. Okay. So, if a subject is singular, noun or pronoun is singular, then they will take a singular verb. If the subjects are plural, two, more than two, then they will take the plural verb. Now, most singular verbs in the present simple form take s or es after them. Now, this is a different thing. यहाँ पे जो singular verb है, they take s or es after them. Okay? Plural में s और es नहीं लगेगा. No. But in singular, we use s or es after any verb. Okay? अगर verb is singular, then you have to write s and es after it. If a verb is singular, okay, verb अगर singular होती है, then s और es use होता है. Okay, s और es use होता है. If verb plural है, then s और es नहीं use होता. Remember it. Now we will take the example. They like ice cream. They means more than two, two or more than two. That is more than one. Plural as subject. Then it is the plural sentence. So we will have to write like. She likes ice cream. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक ही गर्ल है. सो शी लाइक्स हो जाएगा. लाइक के आगे एस लग जाता है. शी लाइक्स आइसक्रीम. नाउ अगेन, the stars shine in the sky. How many stars are there? Many stars. We cannot count them. Okay, uncountable stars. So बहुत सारे stars है. That is plural. So they shine in the sky. But the sun shines in the sky. कितने sun है? Only one. That is singular subject. So it shines in the sky. Same way the moon shines in the sky. थर्ड, बॉयज लर्न देयर लेसन. प्लूरल अगेन हुआ. कितने बॉयज हैं हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादा बॉयज हैं. एक बॉय नहीं है, ज़्यादा बॉयज हैं. दे लर्न देयर लेसन. अरुण लर्न्स हिज लेसन. यहाँ पे अरुण कितने हैं? ओनली वन. सो अरुण लर्न्स हिज लेसन. हमने देखा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने सिंगुलर वाली वर्ब लगाई और उसमें हमने एस और ई एस का यूज़ किया. एंड अगर प्लूरल वाली वर्ब वो सब्जेक्ट थे, दे, स्टार्स, बॉयज, हमने वहाँ पे प्लूरल वाली वर्ब यूज़ किया और उसमें एस और एस ई एस का नहीं किया. देन इंपॉर्टेंट रूल, आई एंड यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली वर्ब लगती है, यानी कि एस और ई एस का यूज़ हम वर्ब में नहीं करते. वी नेवर यूज एस और ई एस विद आई and its verb. Like I play cricket, you play football. We never say I plays cricket. It will be a wrong sentence. You plays football will be a wrong sentence. You play football, I play cricket. I go to school daily. You go to school daily. Okay? And you can see from both the example with I and you, we are using the plural verb. That means s और es का use हमने नहीं किया. Now complete the following table for the singular form of different verbs. अब ये आपको टेबल को कंप्लीट करना है. In the first part we have to write s.
इन द सेकेंड पार्ट हमने ES का यूज़ किया एंड लास्ट में हमने Y को रिमूव करके IES लगाया. नाउ हाउ वी विल डू इट? सिंपली हम S को लगा के किसी भी वर्ब को जो है प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करते हैं. वी चेंज द वर्ब फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, नॉट सिंगुलर टू प्लूरल. यहाँ पे हम प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करते हैं वर्ब को. ओके, बाय यूजिंग S. ईट ईट्स, रन रन्स, राइज राइजेस, ऐसा आपने लगा दिया. सिंग सिंग्स, एस यूज किया. प्ले प्लेज, रीड रीड्स, शाइन शाइन्स. अगर इफ अ वर्ड एंड्स विद ई तो उसके आगे आपको सिंपल एस लगा देना है. वॉक वॉक्स, कुक कुक्स, स्विम स्विम्स, वर्क वर्क्स, राइट राइट्स, डांस dances, invite invites. ओके, सिंपल ऐसा आपने यूज किया और वर्ब को जो प्लूरल से सिंगुलर में चेंज किया. सेकेंड इज गो गोज. इफ अ वर्ड एंड्स विद द वॉवल, किसी वॉवल से एंड हो रहा है, ओ से स्पेशल हो रहा है, हमने उसके आगे ES को यूज किया. गो गोस, डू डज. अगर कोई वर्ड इससे डबल लेटर से एंड हो रहा है, डबल S एंड हो रहा है, तो उसके आगे भी हम ES यूज होते हैं करते हैं. किस किसिस, मिस मिसिस. इफ अ वर्ड एंड्स विद SH और CH, SH और CH से एंड हो रहा है तभी भी हम ES का यूज करते हैं. लाइक ये हमने अपना सिंगुलर से प्लूरल नाउन को चेंज करते वक्त सीखे थे सारे रूल्स. सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं टू मेक द वर्ब फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. SH CH वॉवेल से एंड हो रहा है, डबल S से एंड हो रहा है, सो ये सारे वर्ड्स हमको ES इसमें यूज करना है. विश विशेस, पुश पुशेस, वॉश वॉशेस, फिनिश फिनिशेस, कैच catches, teach teaches, reach reaches, brush brushes. Okay, or in with all the words we have to use ES. The next one is if a word ends with Y. अब आप कहेंगे यहाँ पे प्ले भी Y से एंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन सी Y के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ है? एक वॉवेल. अ वॉवेल इज देयर विद Y, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे. बट यहाँ पे Y से पहले सारे कॉन्सोनेंट्स है, तो वी हैव टू चेंज द Y इनटू I और ES उसके आगे यूज करना है. ओके, Y को रिमूव करके आप IES से यूज करते हैं. फ्राई फ्राइज, FRIES, फ्लाई फ्लाइज, FLIES, ड्राई ड्राइज, DRIES, कैरी कैरीज, CARRIES, cry cries, CRIES, try tries, TRIES, study studies, STUDIES, marry marries, MARRIES. Okay, that's how you will change the verb from plural to singular. Now next is test yourself. First question is choose the correct verb from each blank. Blank में आपके जो दिए गए उसमें से correct verb को आपको use करना. I had told you singular verb में क्या लगता है? S या ES. प्लूरल वर्ब में S या ES का यूज नहीं होता. सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा. नाउ बर्ड्स, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? वी डोंट नो, बट मोर देन वन. ज़्यादा है, बर्ड्स है. डैश इन द स्काई, फ्लाई या फ्लाइज? दे विल फ्लाई. मॉम डैश माई क्लोथ्स, मॉम हमारी क्लोथ्स को क्या कर रही है? वॉश या वॉशेस? कितनी मॉम होती हैं? ओनली वन ना. सो मॉम वॉशेस माई क्लोथ्स. यू डैश स्वीट सॉन्ग्स, तुम यू के साथ वी ऑलवेज यूज क्या करते हैं हम लोग? प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं. सो यू सिंग स्वीट सॉन्ग्स. आई डैश माई होमवर्क डेली, डू या डज? आई के साथ भी हम क्या करते हैं? प्लूरल वाली फॉर्म को यूज करते हैं. सो आई डू माई होमवर्क डेली. द सन, कितने सन है? ओनली वन, तो दैट इज सिंगुलर. डैश इन द मॉर्निंग, राइजेस, RISES, राइजेस. पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स में आपके मदर एंड फादर बोथ आते हैं. ओके, बोथ द पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन. सो देयर आर टू mother and father, there are two people in the parents, so they love their children, not loves, love. Okay,
boys. Again plural है, dash a noise in the class, so they boys will make a noise in the class. They dash games in the evening. They again plural है, इसके साथ भी हम प्लूरल वाला वर्ब यूज करेंगे एंड प्लूरल वर्ब इज प्ले. दे प्ले गेम्स इन द इवनिंग. नाउ सेकेंड इज correct these sentences. This exercise you have to do in the copy that we will do later on. Now take out the third one. Rewrite each sentence with plural subject. यहाँ पे अब आपको सिंगुलर में करके दिया हुआ, आपको इसे चेंज करना है विथ प्लूरल. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है. लाइक फर्स्ट वन, ही गोज टू स्कूल बाय बस. नाउ अब इसको ही को हटा के इन्होंने दे कर दिया, सो वी हैव टू चेंज द वर्ब ऑल्सो इन प्लूरल. तो गो का गोज का बन जाएगा गो. दे गो टू स्कूल बाय बस. माई कजन टॉक्स इन इंग्लिश. माई कजन्स टॉक्स विल बिकम टॉक इन इंग्लिश. दिस गर्ल सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. These girls sing sweet songs. Everything will remain the same. Your verb will change from singular to plural. And whatever s or es is given in the end, you have to remove it. This flower grows in England. These flowers grow in England. This shop opens at 8 o'clock. These shops open at 8 o'clock. She plays tennis in the evening. They play tennis in the evening. Okay. Now fourth is rewrite each sentence with singular subject. अब आपको प्लूरल में दिया हुआ सेंटेंस उसको आपको सिंगुलर में चेंज करना है. लाइक माई ब्रदर्स लिव इन कैनेडा. अगेन माई ब्रदर सिंगुलर हो गया, ब्रदर्स बन गया ब्रदर. सो एक अकेला ब्रदर है, लिव्स इन कैनेडा. एस और ई एस आपको यूज करना है. माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा. माई पेरेंट्स गिव मी मनी. यानी कि मदर फादर दोनों ने मनी दी है. ओके, नाउ माई मदर गिव्स मी मनी. सिर्फ मदर ने दी है तो गिव्स मी मनी. दे गो फॉर अ वॉक daily. She goes for a walk daily. She goes for a walk daily. The gardeners water the plants. Singular for gardener. The gardener waters the plants. Plants will remain the same. Okay, don't make it plant, क्योंकि एक गार्डनर बहुत सारे प्लांट्स में पानी दे सकता है. So the plants will remain the same. The gardener waters the plants. These boys make a noise in the class. This boy will become makes a noise in the class. Noise is always a noise. Okay. This boy makes a noise in the class. Okay. Tomorrow we are going to do exercise number 2 in the copy. Okay, so get ready with your copy tomorrow in your language copy. Thank you. This is all for today.